Good afternoon, class. Now we shall start the topic mitochondria. There is very interesting topic. You can just enjoy a topic mitochondria. It is very interesting topic. Mitochondria is absent in RBC bacteria. It was given by Collicle. In mitochondria, there it is called the powerhouse of the cell. ATP powerhouse cell. Why should we call ATP powerhouse cell? Why should we call ATP a powerhouse cell? I tell you the reason. Now we start mitochondria. Now read it. Just see. It is absent in RBC bacteria. Mitochondria is absent in RBC bacteria given by Colliger. Colliger observed the insect of straight mussel and Fleming give the phyla name. But Altman said the bioblast unseen in another cell. 1900 C-bender do crystal violet stain in staining and another cytoplasmic organelles. Observe and give the name mitochondria. In cells, some mitochondria is found. Chondriosome or chondriome also known. In cell, mitochondria is found that should be called chondriosome and ome. You will see the diagram of mitochondria. Okay, crystal is there. Outer membrane is of 60. Inner membrane is of also 60. That is the perimitochondrial space. That is a perimitochondrial space. Matrix is there. Christy, this is Christy, mitochondrial DNA. This is mitochondrial DNA. Okay. Now we can just start with. That mitochondria of which shape? That was rod and sausage shape. Which shape? Rod and sausage shape. Sausage is made up of lipoprotein. Which is made up of lipoprotein. You can see the diagram clearly. Now see the Christy. It was very divided. That was base, stalk, head, oxysome. Okay, Christy. Now see, mitochondria is a double membrane cell organelles. In mitochondria, there is a Krebs cycle enzyme is found. That is also known as oxidative. Now, in mitochondria matrix, there is a mitochondrial DNA and mitroribosome is also be found. In mitochondrial DNA, there is a circular structure of double string. Any cell of a total DNA present mitochondria, number of is less than 10%. In mitochondria, presence of DNA and RNA in mitochondria. In mitochondria, both are present. DNA and RNA also both are present. They will prepare a food protein and also keep the ability to division. Generally, in mitochondria, semi-autonomous is also chloroplast. माइटोकॉन्ड्रिया में सेमी ऑटोनॉमस क्लोरोप्लास्ट होता है. माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट रहते हैं जो कि क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं और विभाजित करने की क्षमता रखते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया में हर एक सेल नंबर जो होता है वो 500-200 होता है. साइज इसका होता है 0.5 to 2. ह्यूमंस में आरबीसी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है. ह्यूमंस में जो आरबीसी माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एब्सेंट रहता है. अराउंड 1000. You will see, you can just read it. I'm just tell you about in Hindi. I can explain you. Then you can just say it. Okay. माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किया जैनस क्रिक ने क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑक्सीडेटिव एंजाइम है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है येलो होता है कलर में. और येलो क्यों होता है माइटोकॉन्ड्रिया कलर में? क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें राइबोफीबियम प्रेजेंट होता है. माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे येलो होता है कलर में क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ राइबोफीबियम. वेरी इंटरेस्टिंग है, कभी देखना. माइटोकॉन्ड्रिया ग्राइंड आइसोलेटेड होता है क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन माइटोकॉन्ड्रियल डिस्क्राइब्ड रहता है. विस्नाक और टॉक्स ने रिपोर्ट किया था एटीपी फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में. और एटीपी साइकिल के
जो फादर है वो है ATP फ्रिट्ज लिपमैन. दिस इज रिटन बायोसिंथेसिस ऑफ ATP cycle is studied by Fritz Lipman. This is the father of ATP cycle. Okay. मेज में मक्के में मेल स्टेबिलिटी, ईस्ट फॉर्मेशन, पेप्टाइड कॉलोनी, फंगस, कीबक, है ना, ये सारे पॉकी स्ट्रेन कंट्रोल थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया DNA. इसमें एक माइक्रोस्टीरिया सेल की पेयर प्रेजेंट रहती है जिसमें सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया रहता है. इन सेल देयर इज ओनली वन माइटोकॉन्ड्रिया. एक कोशिका में एक ही सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, वो प्रेजेंट होता है माइक्रोस्टीरिया एल्गी. यू विल सी. और नहीं आई तो समझ में, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड यू कैन जस्ट आस्क मी. ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट and if you like, so please subscribe it, share the channel if you like them. Now say it, this is a crystal. अब इसकी जो वेनस मेम्ब्रेन ATP फेस की सिस्टाइन हाइड्रोजनेज एंड NAD रिडक्टेस एंजाइम पाई जाती है. इनर मेम्ब्रेन में F1 पार्टिकल पाया जाता है. जब मेम्ब्रेन ट्रीट किया जाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन के साथ, F1 पार्टिकल उसमें इमर्ज आउट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, पार्टिकल इमर्ज हो जाते हैं. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया DNA में दूसरा DNA स्ट्रेन क्या पेयर बना रहा है हमारा, यूनिनाइन आर साइटोसिन. बोल जी पेयर बना रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में. जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिटोजन के साथ ट्रीट करेंगे तो आउटर मेम्ब्रेन उसमें से हट जाएगा और जो भी पार्ट बचेगा उसे क्या बोलेंगे, माइटोप्लास्ट. क्या बोलेंगे, माइटोप्लास्ट. जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रीट करेंगे, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के साथ को ट्रीट करेंगे डिटोजन के साथ, जब हम उसे यूज़ करेंगे तो जो भी उसका भारी पार्ट है, मतलब जो उसका ऊपरी भाग है, वो पूरा आउटर मेम्ब्रेन जो है हट जाएगा और जो बचा हुआ है उसे बोलेंगे माइटोप्लास्ट. और वो माइटोप्लास्ट क्रेब साइकिल करेगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. चेन्स ने कहा था कि इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टल राउंड शेप में स्टॉल्ड रहते हैं स्ट्रक्चर से बोलते हैं ऑक्सीजोम. क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम. व्हाट शुड बी कॉल्ड, ऑक्सीजोम. ऑक्सीजोम को हम क्या क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम को हम बोलते हैं F1 पार्टिकल, रेस्पिरेटरी असेंबलीज, एलिमेंट्री कैनाल. ओके. ऑक्सीजोम को हम क्या क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल्स, रेस्पिरेटरी असेंबली और एलिमेंट्री कैनाल्स. फिर F1 पार्टिकल्स में ETC इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. F1 पार्टिकल्स में ETC पाया जाता है और ETS पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये बोलते हैं. इसे ETC, F1 पार्टिकल्स में ETC पाया जाता है, वैसे ETC को ATS भी बोलते हैं. डिवॉइड ई ग्रीन के अनुसार F1 पार्टिकल में ATP की फुल फॉर्म वेरी एडेनाइन एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाता है, फॉर्मेट करता है. डिवॉइड ई ग्रीन के अनुसार F1 पार्टिकल में जो है ATP फॉर्मेशन होता है जो कि एक एनर्जी रिच कंपाउंड है और हम बोलते हैं इसे कॉल्ड करेंसी ऑफ लाइफ प्रोसेस. क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ लाइफ प्रोसेस. माइटोकॉन्ड्रिया में ATP जो है लार्जेस्ट अमाउंट है जिसमें हम पावर हाउस सेल बोलते हैं. वे बताया था मैंने आपको पहले शो में कि ATP को हम पावर हाउस सेल बोलते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजोम होता है वो होता है 10⁴ to 10⁵. कभी कभार ये जो जाते हैं F1 पार्टिकल्स मेम्ब्रेन लेआउट. पार्सन के अकॉर्डिंग F1 पार्टिकल में ETS होता है, लेकिन रेकन ने बताया कि ATP पेज जो है ATP पेज सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है और फॉस्फोरिलेशन उससे जुड़ा हुआ है. जैसे डिवाइड ई ग्रीन के अनुसार ये था कि F1 पार्टिकल में ATP जो है ATP फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम उसे पावर हाउस सेल बोलते हैं, राइट. बट पर्सनस के अकॉर्डिंग F1 पार्टिकल जो है ETS है, लेकिन रेकन ने बताया ATP पेज सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज होता है. अब माइटोकॉन्ड्रिया की इम्पोर्टेंस देख लेते हैं. ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. Mitochondria importance. What is the importance of mitochondria? Presence of enzyme reason mitochondria have a structure is different and functions. Okay. Cell of respiratory chain and oxidative phosphorylation, oxidation, dehydrogenation. जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो रेस्पिरेटरी चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ये सब होता है
माइटोकॉन्ड्रिया एक रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेल ही है सेल का। कार्बोहाइड्रेट और फैट कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं CO2H2O। क्या बनते हैं, एनर्जी बनाते हैं CO2 एंड H2O। अच्छा, मैंने आपसे शुरू में कहा था, ये क्वेश्चन पूछा था कि मैंने आपसे कहा था, बाद में बताऊँगी कि ये हम माइटोकॉन्ड्रिया को ATP पावर हाउस सेल क्यों बोलते हैं, वाई शुड बी कॉल्ड, बिकॉज इन माइटोकॉन्ड्रिया देर इज़ अ रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेल सेल। In mitochondria, there is a respiratory organelle cell. There is a respiratory chain, oxidative phosphorylation, dehydrogenation is there. So in mitochondria respiratory organelle cell होती है और उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है कम्प्लीटली क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और फिर हमें एक एनर्जी बनाते हैं। कौन सी एनर्जी बनाते हैं, CO2 एंड H2O एनर्जी बनाते हैं, इसलिए हम इसे ATP पावर हाउस सेल बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं ATP पावर हाउस सेल, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेल होती है सेल की। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो हैं, जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं वो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट जो फैट, और अपनी एनर्जी बनाते हैं CO2 और H2O। ओके, यू विल गॉट द आंसर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन जस्ट आस्क मी। नाउ सी दैट जो एनर्जी अब मिली माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, अब उसमें ATP अपना काम करने लग जाता है। ATP जो है अपना एनर्जी लीवर को हम ATP पावर सेल भी बोलते हैं। अब ATP देख लो, ATP की फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इस एडेनिन को हम प्यूरिन बेस बोलते हैं, पेंटोज और फॉस्फोरिक एसिड। अब ये जो ATP है 3 मॉलिक्यूल्स बनाता है। ये देखो, पहला फर्स्ट एडेनाइन प्लस पेंटोज शुगर, एडेनाइन एंड पेंटोज शुगर क्या फॉर्म कर रहे हैं, एडेनोसाइन। क्या फॉर्म कर रहे हैं, एडेनोसाइन। एडेनोसाइन प्लस फॉस्फेट शुगर क्या बना रहे हैं, AMP, दैट इज एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ओके, पहले था कि एडेनाइन और पेंटोज हमारा एडेनोसाइन बना रहा है, अब एडेनोसाइन और फॉस्फेट हमारा AMP बना रहा है, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अब एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट और फॉस्फेट ग्रुप क्या बना रहे हैं, ADP, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट बना रहे हैं फॉस्फेट ग्रुप ATP, ट्राइफॉस्फेट। अब लास्ट में फॉस्फेट ग्रुप हो गया एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का, जो कि एक बाउंड एनर्जी बना रहे। और जब ये एनर्जी टूट जाएगी, जब ये एनर्जी बॉन्ड हो जाएगी, जब एनर्जी बॉन्ड टूट जाएगा इन सब एनर्जी का ATP का, तो फॉस्फेट ग्रुप व्हेन ब्रेक एनर्जी मेक स्टेबल। जब ये एनर्जी बॉन्ड टूट जाएगा तो ये अपनी एनर्जी को दोबारा डबल कर लेगा। कैसे कर लेगा, एडेनोसाइन फॉस्फेट AP देन P फॉर्म क्या बना रहे हैं, एडेनोसाइन फॉस्फेट। देन कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, 7000। नाउ इसमें हमने ऑक्सीजन पढ़ा था कि ऑक्सीजन को हम क्या क्या बोलते हैं, एनीवन जस्ट टेल मी व्हाट शुड वी से द ऑक्सीजन। F1, yes, speak. No, I can just show you. Oxygen, what should we say, F1 particles, respiratory assembly, or is elementary canals. Yes, so oxygen was discovered by chance. Who is discovered, chance. Okay, and if you have any query you can just ask me. Now class is finished. Now we continue the topic tomorrow. We can start the topic endoplasmic reticulum. You can just read it. We can just start it. Okay, but you can just ask me if you have any queries. You can just ask me. Okay, good afternoon.